छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है वहाँ के जजों ने इस पर जो अपना फैसला है वो बिल्कुल सुरक्षित रख दिया है और अपनी जो मंशा है वो बिल्कुल थोड़ी सी हम ये देखें तो बिल्कुल जाहिर सी कर दी है कि फैसला किधर आने के ज़्यादा चांस हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमने देखा कि कई टाइम से कि ये बीएड और डीएलएड इन दो कोर्सेज को लेकर जो द्वंद्व बना हुआ है या फिर हम कह सकते हैं कि फाइट चल रही है थर्ड ग्रेड जो टीचर होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, कि कई स्टेट में क्या हो रहा है कि जो बीएड वाले जो कैंडिडेट थे उनको जो हमारे प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें शामिल किया जा रहा था और कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये क्लियर कर दिया गया है कि जो 1 से जो 5th के जो टीचर हैं उनमें ये बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको शामिल नहीं किया जाए। ऐसा ही एक हम देखते हैं कि जो चल रहा था मैटर वो था छत्तीसगढ़ टीचर जो रिक्रूटमेंट थी उससे रिलेटेड। तो बात करते हैं 29 फरवरी का जो दिन जहां पर छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट था उस हाई कोर्ट में हम ये देखते हैं कि सुनवाई हो रही थी इस केस को लेकर, क्योंकि अभी हम ये देखें कि लास्ट में छत्तीसगढ़ जो सरकार है उन्होंने बीएड जो अभ्यर्थी थे बीएड अभ्यर्थी को इस प्राइमरी जो नियुक्ति थी वहाँ पर पोस्टिंग दी थी। तो उसी के लिए ये यहाँ पर बहस चल रही थी हाई कोर्ट में और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोरा जी हैं और बीएड की तरफ से श्रीवास्तव जी, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि कोर्ट में क्या बहस चली, हम आपको सुनाते हैं, आप सुनिए। It is therefore clear that B.Ed course is not designed for teaching at primary level. Moreover, inclusion of B.Ed candidates for primary classes is in the teeth of several decisions of this court that has consistently held that diploma in elementary education D.Led and not B.Ed is the proper qualification in primary school. My lords, that was Dilip Kumar Ghosh, PM Lata, and the other judgments. Context, read paragraph 52. The pedagogical skills of a teacher must be given a very high priority. But our priority, this he's talking about the government, the learned judge. He's not talking about something. Our priority seems to be different. It is not to impart quality education, but to provide job avenues to B.Ed candidates, as this seems to be the only reason for their inclusion in presence of overwhelming evidence that B.Ed course is not a suitable course. Rajasthan, where the matter was filed, please see the last 3 lines. The irony here is that all this is being done when the state of Rajasthan already has more than required number of diploma qualified candidates available. This is besides the fact that there is presently no such bridge course available. At least there is none till the disposal of the petition by Rajasthan High Court. This is all over India. I have an RTI reply. They have no recognized bridge course. I have filed it with that page. Yes. My lords may see this is in RTI, and please see the remarks. No institution is recognized by NCTE for the said course as on date. Please see on the 3rd column, 4th column. Yes, the query was whether there is any bridge. So therefore, there is a specific challenge to this, because today the underlying basis of that notification by which an amendment was made to bring in the B.Ed education had gone. My lord's prayer number 10.2 is, this honorable court may be pleased to strike down impugned annexure 1 of schedule 3 of Chhattisgarh School Education Services Recruitment Promotion Rules, annexure P1, for being arbitrary, illegal. My lords may please turn to page 41. There, that is where the notification has been extracted. We have seen. Yes, this says, in exercise of powers conferred under Article 309, Governor makes following further amendments to the recruitment and promotion rules. Now, what is the amendment that is made? Is to include B.Ed as a qualification. So I have challenged that. Prior to this, B.Ed was not a qualification. तो आपने देखा फ्रेंड्स कि किस तरीके से यहाँ पर मीनाक्षी अरोरा जी के द्वारा डीएलएड का पक्ष रखा गया और ये बताया गया कि जो एजुकेशन पॉलिसी है या हम बात करें प्राइमरी जो टीचर है उस प्राइमरी टीचर के लिए जो डीएलएड जो कोर्सेज है वो कितना हम ये मान के चलें
की उपयोगी है या उसकी सार्थकता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो डीएलएड कोर्सेज होता है वो प्राइमरी वालों के लिए ही उसको डिज़ाइन किया जाता है, और बीएड का जो कोर्सेज होता है वो हम बात करें तो अपर प्राइमरी या मिडिल हायर सेकेंडरी वहाँ तक के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वो पूरा फ्रेमवर्क है उनके लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि दोनों की हम बात करें कि पेडागोजी में अंतर होता है, एक छोटे बच्चे एक थोड़े से बड़े बच्चे। तो बिल्कुल यहाँ पर हमने सुना कि दोनों जो वकील थे एडवोकेट, उन्होंने अपना पक्ष रखा और बड़ा मजबूती के साथ यहाँ पर मीनाक्षी जी ने जो तथ्य बताए, तो इससे ये लगता है कि अब छत्तीसगढ़ जो सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार को भी अब प्राइमरी सेक्शन में डीएलएड वाले अभ्यर्थी को ही शामिल करना होगा। वहाँ पर ये बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। मैं किसी एक फेवर की बात नहीं कर रहा कि बीएड वालों के पक्ष में है या डीएलएड वालों के पक्ष में है, जो फैसला है, क्योंकि हमें देख सकते हैं कि जो राजस्थान जो सरकार थी, राजस्थान गवर्नमेंट ने तो पहले ही बड़ा अच्छा यहाँ डिवाइडेशन कर लिया है कि थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है उसको L1 और L2 में डिवाइड कर L1 के लिए वही डीएलएड और एसटीसी वाले अभ्यर्थियों को रख दिया है और L2 के लिए बीएड वाले अभ्यर्थी को वहाँ पर मौका दिया गया है। तो वहाँ कोई द्वंद्व होना ही नहीं था। हाई कोर्ट का भी डिसीजन था राजस्थान का, तो बिल्कुल अच्छा था। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने भी बताया है कि राजस्थान सरकार ने किस तरीके से यहाँ पर वैकेंसी कराई, या राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर कल का जो दिन था 29 फरवरी का एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है वहाँ के जजों ने इस पर जो अपना फैसला है वो बिल्कुल सुरक्षित रख दिया है, और अपनी जो मंशा है वो बिल्कुल थोड़ी सी हम ये देखें तो बिल्कुल जाहिर सी कर दी है कि फैसला किधर आने के ज़्यादा चांस हैं। और हम ये कहें कि यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसको भी इसी तरीके से जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है उसको भी L1 और L2 की तरह डिवाइड करके दोनों जो विद्यार्थी हैं कोर्स के, जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं और डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये जो द्वंद्व है दोनों के बीच में समाप्त कर देना चाहिए कि L1 में जो डीएलएड वाले और L2 में बीएड वाले, इस तरीके का कुछ वहाँ पर भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप द्वंद्व में न पड़ते हुए अपनी अपनी जो तैयारी है उस तैयारी पर बने रहिए और आगे जो वाली वैकेंसी है उनके लिए तैयार रहिए। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि इस तरह की जो अपडेट है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।